this session is conducted by our company to help us stay professionally energized and motivated. So please welcome Mr. Gaurav Rastogi, who has inspired and motivated so many people and will be taking today's session, as we all know. And I'll just like to introduce you all with him. So Mr. Rastogi teaches the yoga of living deeply, which is an authentic yoga system designed for the modern world. He has founded 2 learning NPOs. As a professional, Mr. Rastogi has led executive roles at large companies and also founded and sold an AI startup. As a board mentor, Mr. Rastogi works closely with the business leaders that are driving business reinventions and sales transformation. He's also the author of 3 books and several podcast episodes on the future of work. So, Mr. Rastogi, please take the session forward. Thank you very much. I'd like to ask that for the next 90 minutes, you just pay attention to our conversation together and just listen and absorb. If you need to take notes, you can take notes, but try not to be distracted by phone, email, friends, neighbors, and other such interruptions. We're going to have an interactive conversation. I will be talking a lot, but I'll also be listening to you and your feedback. So make sure you're able to speak up wherever you're sitting. Also, make sure you're on mute if you're not talking, so that we don't have any feedback or additional noise coming into the call. So if you could just check your Zoom, that'll be great. All right. I'd like to now ask you to just sit quietly. Sit in any comfortable pose. Okay? However you're sitting is okay. But sit with your back straight. Straight but not stiff. Close your eyes gently. Relax the expression on your face. You're sitting comfortably, making sure you're neither leaning left nor right, neither back nor forward, just upright. Keep your back, neck, and head in a straight line. The eyes are closed gently. The expression on your face is relaxed. Let the tongue fall into the bottom of the mouth. Now, as you breathe in, take your attention into your belly. Let your belly expand. As you breathe in, let the belly expand. As you breathe out, just let go. Breathing into the belly, let the belly expand. Breathing out, simply let go. Keep your attention in the belly. Now I'm going to chant Om 3 times and then the opening prayer, Sahana Bhavatu. I'll explain the meaning as well. But for now, just bring your palms together at the heart center in Namaskar Mudra. Press your palms together gently. Touch your fingers together gently. Gently touch the back of your thumbs into your chest. Now bring your attention to the hollow space between the palms. Pay attention. Feel any sensation, any vibration, any energy between your palms. Stay right here. I'm going to chant Om 3 times and then the opening prayer, Sahana Bhavatu. Exhale completely. Take a deep breath. Inhale.
Inhale. Inhale. Inhale and chant. Sahana vavatu, Sahanau bhunaktu, Sahaviryam karavavahai, Tejasvinavadhitamastu mavitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. And release your palms. You can rub your palms together to generate some heat, and then cup your eyes to transfer that heat. Then blinking, open your eyes and pull your palms back like an open book. Namaskar. This prayer I chanted is obviously in Sanskrit. It's from. It's an interesting prayer. It's like a legal defense. You will sign disclaimer, right? Where you say I allow you to do something and not do other things. So what you're doing is we are creating this space together. We have created a space where we can ask questions, have an argument, have debates, and yet come out at the other end with more energy, more purpose, more clarity, more light. And that's all the prayer is. It's really a legal disclaimer. It appears in 4 Upanishads, and usually in the context where a class is about to begin, and you and the entire community chants this together. Namaskar. My name is Gaurav Rastogi. My spiritual name is Ekras Gorakh. You can Google me by both different names, and you're going to get different content about me. Today's conversation is about staying in and winning. Of course, we're all staying at home. And over the last 5 months of staying at home, we've realized that work can be very stressful even when you're working from home. And I've done this workshop at several companies because universally people feel that they're getting burnt out, they're getting tired, they're not getting the energy from work, and people want to know why this is happening and how to get out of it. Is there anyone here who doesn't understand Hindi? Raise your hand. If I can't see you, too bad. ठीक है, तो मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी So let me tell you a little bit about myself. एक second, I'll share my screen. This is me, one second. Got this here. Okay, good. I have you here and I have this here. Like this Clark Kent and Superman, there are 2 different personalities. I have 2 sides of my personality. I run a software company. I used to be an executive at Infosys for the longest time. And then after that, I live here in the San Francisco Bay Area. And because I live here, everyone does startups. हमने भी startup अपनी लगाई. Artificial intelligence की startup थी, बनाई, बेची. And now I do a lot of advisory work, helping large companies, small companies go to market. And as part of that, I'm also a board mentor. Alongside that, I run 2 nonprofits. One is Living Deeply Foundation. I'll show you some videos from there. And the other is Hindu Community Institute, where we train people Karma Yoga. And I can explain if you want to know what that is. So these are both focused on learning and education. And our objective is, and my audience is mostly American people, Indian people in America and American people in America. And it's mostly that we want to understand all the information that's available to us. And that's why they come to me. Anyway, on the business side, I help with business reinvention and so on. I'm also a trained yogi. I'm a yoga instructor as well. I've trained and certified as a yoga instructor, and I run a fairly aggressive yoga program. We do free yoga classes online on Zoom.
And we've done 1,050 yoga classes since the beginning of lockdown. We do 7 classes a day. There are 40 instructors, two instructors in India. The rest of the instructors are here. And we do a lot of yoga and meditation workshops. So, for example, let me show you. Okay, here. 1 second. So we're here. Okay. So on YouTube, you'll find a lot of my videos. These are some of the recordings from our yoga sessions. So if you go here, you go to yoga asanas, there are 114 yoga videos that we have uploaded over here. These are, short sessions, long sessions, and so on. I also teach meditation. And I also do a lot of interfaith talks because a lot of people want to learn about different religions and different philosophies. And I do a lot of talks. I've done 30 odd talks on Hinduism. Again, for the same reason, people want to understand what this religion is and where it comes from. India में भी किसी को पता नहीं होता है. So those talks are recorded. Some of those are uploaded over here. You can see them. Again, if you go to YouTube and write Yoga of Living Deeply, you'll find all this information. So that's the background. आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं stress, fatigue, attention residue, your schedule, daily schedule, और आपस में कैसे connection बनाएं, all of these things. All right. Now, before we begin, I'd like to ask some of you for you to unmute yourself and just introduce yourself to me, so I understand the audience. आपको क्या चाहिए, किस चीज में interest है, और आप क्या सीखना चाह रहे हैं आज के conversation से. So go ahead and unmute yourself and say a few words. आप volunteer नहीं करेंगे तो मैं आपको volunteer कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिएगा. Hi, Gaurav. कौन बोले बोले हाथ please raise कीजिए so I can see who you are. That's the wrong sort of audience feedback. There are two people sitting in the same room. All right, go ahead. Yes. Suruchi, yes, please. Yes. So hi, this is Suruchi, and I am looking forward for something related to stress. Because Okay. yeah. Why do you want to learn about stress? Stress हो रही है या आप just जानना चाह रहे हैं? नहीं, स्ट्रेस तो हो ही जाता है. कुछ सिचुएशंस हमारे हिसाब से नहीं होती है तो स्ट्रेस हो जाता है, राइट? तो कुछ काम में डिले होता है तो स्ट्रेस हो जाता है, कुछ काम गलत हो जाए तो उससे स्ट्रेस हो जाता है. तो स्ट्रेस इज वन थिंग जिसकी वजह से मतलब इट्स वेरी कॉमन मेरे लिए. तो मुझे बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है. आई पैनिक अ लॉट एंड आई टेक स्ट्रेस वेरी इजीली. Okay. Thank you for sharing. Thank you for also opening up. और बोलिए लोग, कोई और बोले? One thing, Gaurav, I would like to add, Anurag said, I think the oldest of the lot. And what very funny thing is that, young guys getting stressed out. When we were at their age, we probably didn't know the word stress, right? But now even our kids say, I'm stressed out, So is it like, people have acquired this as a status symbol, or is it like really the stress is there, Stress, depression लोग बहुत easily use भी करते हैं, वो बात तो है. Suruchi, do you mind just starting a recording so that I have a recording for a point later? It's on, Just sir. thank you. Yeah. It's on. Okay, fantastic. Okay, great. तो हाँ, young लोग stress. अनुराग, क्या आप और मैं उस generation के हैं जो street lamp के नीचे पढ़ा करते थे और 3-3 किलोमीटर swimming करके जानी पड़ती थी स्कूल? Yeah, absolutely. And like, at that age, मतलब stress word तो पता ही नहीं था कि होता क्या है, right? Yeah. It was By the all way, about- I grew up in Delhi. For those who are interested, I went to Delhi College of Engineering, which used to be near Kashmiri Gate, not the new campus. So इतने पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं. और I did my MBA at IIM Ahmedabad. This was also way back when. हाँ जी, और कोई बोलें? Hi, Gaurav. This is Munish. Yes, Manish, I see you. From the time we've been working from home, I realized, a lot of communication gap happens. What you actually intend to say
you've been not able to communicate on an email or on a virtual space, you know. So I'm looking forward. What should be, you know, the way of communication, style of communication that whatever you want to convey, probably you can able to. बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू. Alright, next. गौरव, हाँ जी, निवेश इवेंट्स, आपका नाम क्या है? no, this is Mohammed Ghazi Khan Gaurav from HP actually. Okay. HP. Where are you? I don't see you. Am I seeing you? There's some issue. Where are you? HP. I see Mr. HP. All right. Yes. Yes. My thing is that Gaurav, I am not able to let things go off. What happens that if something happens, it stays in my mind. I cannot take it out. It stays with me forever actually. Not letting things go and वो thoughts दिमाग में बैठी हुई हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं. Yeah. Yes. हाँ, फिर वो जो एक conversation सुबह हुआ है वो अगले हफ्ते तक दिमाग में बैठा हुआ है कि यार ये बोल देना चाहिए था, ये ठीक रहता. Yes. उसकी हिम्मत कैसे हुई सोचने की? Not like that, but yeah, कोई भी चीज हो, पर्सनल हो, कोई भी ऑफिशियल हो, वो चीजें निकल नहीं पाती हैं. ज़हन में बैठी रहती है, सब दिल में बैठा रहता है. ठीक, बहुत अच्छा सवाल है. और कोई सवाल? मेरा एक और सवाल है अभी यहाँ पे. So इसी से मैं रिलेट कर पाई एक और चीज, which is when we are not able to express things properly, be it professionally or be it personally, हम लोग express नहीं कर पाते अपने आप को correct way में. So I think that is another thing जो मैं सीखना चाहूँगा. बहुत अच्छा. Okay. Couple more people. Hi Gaurav, this is Anupma. Anupma, hi. Basically, just wanted to know a few things. First of all, the time management thing. So right now, I basically handle the HR department here. So many people come up with the time management thing. There's a lot of problem people are facing during the work from home tenure. So if you can guide us through the time management, how we need to, because we are coping with the personal environment as well as the official thing. So that is the one thing I would know. बहुत अच्छा. It's a very good question, Anupam. Thank you. आरती, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मेरा एक पॉइंट है. जैसे कुछ बातें होती हैं दिन भर की, तो वो दिमाग में चलती रहती है. ऐसा लगता है वो विवेश हैं, लेकिन फिर भी अपने आप ही आ जाती हैं. तो उस चीज को मतलब कैसे लीव करें? Fantastic. Repetitive thoughts. Great. एक सेकंड में कुछ गूगल करने दीजिए, एक सेकंड. और कोई किसी और को और कोई फाइनली टिका टिप्पणी? So Gaurav, Sridhar here. Sridhar. Yeah. Where are you? Right here. I see you. Okay. So I think there is one aspect that I think I'll speak for everybody else also. Right. Whenever we used to go to office earlier, right, we used to go when people go out of office, they are switched off from work, right, and into their personal lives. Right now, with everybody working from home, where is that line being drawn, and how do we draw that line? Yes, I think fantastic. that's something that should be something to sort out, I think. आपने सबकी दिल की बात करी है, सब लोग सिर हिला रहे हैं इस बात पर. I told you I'm speaking for everybody else. Gaurav, one question. Chetna here. I see you. Hi. So I have a team of fabulous girls, about 12 of them. And all I want to know is how do I keep them motivated? Sometimes they really can get off. Yeah. Fantastic. These are very good questions. Thank you for sharing and opening up. और कोई भी बीच में सवाल आए, हाथ रेस करके, unmute करके, you can always ask me at any given point. तो शुरू करते हैं हम स्ट्रेस से. तो स्ट्रेस क्या होती है और क्यों होती है, ये बात हमें जाननी जरूरी है. और ये हमारे बॉडी में कैसे होती है, ये भी बात जानना जरूरी है. तो स्ट्रेस वर्ड हम काफी कैजुअली यूज करते हैं. स्ट्रेस हमें लगता है कि यार स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी, you know, these words that come to us, स्ट्रेस हो रही है, टेंशन हो रही है, फटीग हो रही है, ये सब वर्ड्स हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं. बट इसका क्या बैकग्राउंड, ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं, इनका क्या मतलब है, हाउ डज इट फील टू बी स्ट्रेस्ड, ये सवाल हम ज्यादा सोचते नहीं. लेकिन जब आप 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि और कुछ करने को नहीं होता है. आदमी स्ट्रेस, टेंशन और फटीग के बारे में ही जानता है.
तो मैं आपको स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. द वर्ड स्ट्रेस एक्चुअली कम्स फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स. होता है ना, वो रस्सी खींचते हैं तो टूट जाती है थोड़ी देर के बाद. So when you in mechanical engineering first year they teach you all these things. वो एक they take a cable, वो एक वायर होगा, उसके ऊपर वेट डालते चले जाएंगे, डालते चले जाएंगे, डालते चले जाएंगे. तो शुरू में nothing happens. After a while it begins to flow and after a while of course it breaks. तो मैकेनिकल इंजीनियर्स में आपको ये सिखाया जाता है कि you keep adding weight, keep adding weight, keep adding weight, and then eventually it will begin to flow, and then eventually it will break. That whole phenomenon, that is stress and strain. वो weight जो होता है वो strain है, और जो उसकी खिंचाई हो रही है वो stress है. And that's how these words were invented. These words come from physics and engineering. And 1938 में कोई साइंटिस्ट ह्यूमंस को स्टडी करा था, बायोलॉजिस्ट, एंड उसने कहा कि ह्यूमंस का भी सिमिलर रिएक्शन होता है कि आपके ऊपर काम बढ़ता चला जा रहा है तो आपका रिएक्शन इंप्रूव होता जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इंप्रूवमेंट बंद हो जाते हैं, फिर सिचुएशन वर्स होने लगती है, फिर आदमी खत्म हो जाता है. सो दे रियलाइज दैट ह्यूमंस हैव अ वेरी सिमिलर रिस्पॉन्स. सो इमेजिन एक वायर है और आपको खींच रहे हैं, तो खींचता चला जा रहा है, पतला हो गया और उसके बाद टूट गया. That's how you're feeling at this point, which is stress. And the reason you're feeling it, I'll explain. Pradna, are you saying something or are you just on unmute? No? Okay. Suruchi, would you mind muting Pradna? Thank you. Yeah. Okay, so it's a word that has been invented in physics and borrowed by biology. Words back and forth आते रहते हैं. But होता क्या है शरीर के अंदर, मैं वो उसको आपको जरा ध्यान से समझाता हूँ. जो आपका कॉन्शियसनेस है, आपका जो दिमाग में प्रोसेसेस चल रही हैं, थॉट्स चल रही हैं, वो आपकी बॉडी मैनेजमेंट से डीलिंक्ड है. What that means is आपकी बॉडी में आपके जो ब्रेन है, ब्रेन थॉट्स भी कर रहा है और आपके बॉडी को भी रन कर रहा है. जो बॉडी को रन कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है आपकी थॉट से, जनरली स्पीकिंग. सो you're not able to, for example, if I tell you to increase your heart rate, can you think and increase your heart rate? It's very difficult. Yogis can do it, but most people can't do it. If I tell you to increase your digestion, भाई चलो अपना भाई खाना खाया, digestion increase करो, you can't really do it. If I tell you to start sweating, can you start sweating when I tell you to sweat? No, you can't. So these are processes inside the body, अंदर ही चल रहा है, and your brain is involved in it, but your consciousness is not involved in it. So think of it as brakes and accelerators in your body. This is called the autonomous nervous system. Autonomous nervous system, autonomous इसलिए कहलाता है क्योंकि वो autonomous है, आपकी thinking से independent है. Why is this important? आपके ब्रेक्स और एक्सेलरेटर हमेशा चल रहे होते हैं शरीर में. जब आप खाना खाते हैं तो किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, आपको लगता है कि चलो लेट जाते हैं थोड़ा, राइट, लेट मी रिलैक्स अ लिटिल. क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, आपका पेट में खाना है, योर blood needs to go to your stomach, right, for you to be able to digest. So what the body automatically does is take the blood away from your arms and legs and send them to your stomach for better digestion. So there are two types. That's the braking thing. जब आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, आप गाड़ी चला रहे हैं दिल्ली में, तो normal है, you will feel your heart racing, right? Has anyone not felt it? If you're driving a car and your heart doesn't race, you feel your heart racing, anger rising, right? Your thoughts are now running faster. That's the result of the accelerator in your body. So these are natural tendencies. ये अपने consciousness के नीचे level पे होता रहता है. But normally they alternate. हर 1.5 घंटे कभी ब्रेक चलते हैं, कभी एक्सेलरेटर चलते हैं. सुबह उठते हैं आप, तो आप सो के उठे हैं, तो आपका मन करता है कि थोड़ा और सो जाएं. नहीं, मन नहीं करेगा आप सो जाए, अभी तो सो के उठे हैं, राइट? आपका मन करता है चलो यार बेड से निकलें, कुछ करते हैं,
right? Your accelerator is working in the morning. थोड़ी देर के बाद मिड डे आपको थोड़ी सी लगता है कि चलो आप थोड़ा ब्रेक लेते हैं, right? So you can see how your body works below the surface. But what happens is you can influence through your lifestyle, through your thinking, and through your breathing. तो मैं आप तीनों के बारे में बताऊंगा. But if you have angry thoughts, आप रिपब्लिक टीवी देख रहे हैं तो आपको एंग्री थॉट्स आएंगी, बिकॉज आप वो न्यूज देख रहे हैं, लोग आपस में लड़ाई धड़ाई कर रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं. थोड़ी देर में आपको भी लगेगा कि आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्वर्सेशन, आपको और गुस्सा आने लगेगा, राइट? तो क्या होता है उससे? बिकॉज ऑफ द थॉट्स, याचना आप ओके, बिकॉज ऑफ योर थॉट्स यू कैन इन्फ्लुएंस योर ब्रेक्स एंड एक्सेलरेटर्स. तो स्ट्रेस ये है कि आपने ब्रेक एक्सेलरेटर के ऊपर पैर दबा दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे रेस कर रहे हैं, और ब्रेक लग ही नहीं रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी इज एक्सेलरेटर पे चले जा रही है गाड़ी. हाउ लॉन्ग कैन यू गो ऑन लाइक दिस? नॉट वेरी लॉन्ग, राइट? You don't have a break from these angry thoughts. You don't have a break from anything else. तो fight or flight response होता है. जब जंगल में हम रहते थे या वो अफ्रीका के सवाना में रहते थे, पीछे शेर आ रहा है, तो आप ये थोड़ी सोचेंगे कि यार कल खाने में क्या खाएंगे, हैं? कल कुछ और अच्छा बढ़िया खाएंगे कल. नहीं, आप जान बचाने, जान के लाले पड़े हैं, तो आपके पीछे शेर आ रहा है, आप भागोगे. So at that point you don't want to rest and digest. You want to fight or flight. या तो लड़ लो या भाग लो, right? Your normal response is fight or flight these days. आप सुबह काम पे आए नहीं कि आपको काम के सोचने आपने शुरू कर दिया, यार ये वाली ईमेल को रिस्पॉन्ड करना था, वो प्रोजेक्ट ड्यू है, ये रिपोर्ट में नंबर ठीक नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूंगा? And then you start worrying about those things, and those thoughts cause your body to feel the same way as if a lion is chasing you. एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रन किया था इन्होंने. 2 चेस प्लेयर बैठे हुए हैं आपस में, और उन्होंने उनकी ब्लड प्रेशर और सब कुछ ट्रैक किया. तो जो चेस प्लेयर बैठे होते हैं, बैठा हुआ है, कोई भाग नहीं रहा है, कोई भगदड़ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, उसका हार्ट रेट उतना ही होता है जितना ओलंपिक रनर का होता है. बिकॉज द स्ट्रेस ऑफ द चेस is so intense that it feels like you're running and a lion is chasing you. That is short-term stress. So let me recap क्या हो रहा है. आपके conscious में actually इसको stop share कर देता हूँ मैं बार-बार. हाँ, now you can see me. So that is stress. Stress is when you feel that you don't have a break from all this stress and tension, all the pressure that you're receiving. The thoughts that you have are only of one variety. दूसरे टाइप की थॉट्स है नहीं. और आपकी बॉडी जो है, इमेजिन इफ यू आर ड्राइविंग योर कार एंड यू ओनली हैव एन एक्सेलरेटर, नो ब्रेक, तो कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट होगा, राइट? सो व्हेन योर बॉडी, सो अ लॉट ऑफ योर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो जो बॉडी के, वो ब्रेक्स लगाने पर ही होते हैं. प्रोक्रिएशन, डाइजेशन, टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल, ये चीजें तभी होती हैं जब ब्रेक्स लगते हैं. तो ब्लड आपका जब दौड़ने में नहीं लगा हुआ है, so you need to be able to get a break from all these racing thoughts, anger and outbound energy. But वो होता नहीं है because of the modern work environment and because we don't know how to take a break. And so what happens is you're always in the same state. दिन में 2 मिनट आपके पीछे शेर भागा है तो आप भाग लो 2 मिनट, लेकिन आप 24 घंटे आपके पीछे शेर भाग रहा है तो क्या आप डाइजेशन पे आपकी फोकस होगी? नहीं, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, राइट? क्या आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर पाएगी? नहीं, बिकॉज रिपेयर करने का क्या टाइम है, पीछे शेर भाग रहा है. भी रिपेयर तो आदमी तब करेगा ना जब टाइम ब्रेक मिलेगी. सो यू आर नॉट एबल टू टेक अ ब्रेक, एंड बिकॉज यू आर नॉट एबल टू टेक अ ब्रेक, योर बॉडी बिकम्स, योर इम्यून सिस्टम बिकम्स वर्स. आपका डाइजेशन खराब हो गया, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो गया, आपका हार्ट हमेशा हार्ड वर्क किए जा रहा है, इट्स नेवर गेटिंग अ ब्रेक, तो हार्ट भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा, राइट? एंड देन योर स्ट्रेस ईटिंग, बिकॉज आपका ग्लूकोज मॉड्यूलेशन जो है वो भी खराब हो गया. सो नाउ यूर स्ट्रेस ईटिंग एंड उससे और बुरी हालत हो गई.
So you see how this works. Stress is happening under the surface of your consciousness, but it's happening because of the contents of your thoughts. And it's a physical reaction. आपके body में आपको feel हो रहा है stress. This is very important for you to understand. तो योगा, मैं योगी हूं तो मैं योगी लैंग्वेज में बताता हूँ. योग में इसको कहते हैं ईदा और पिंगला नाड़ी. ईदा नाड़ी and पिंगला नाड़ी. ईदा is cooling, पिंगला is warming. And ये जो brakes and accelerators हैं वो चल रहे होते हैं. And आप देखेंगे जब आपको गुस्सा आ रहा होगा या स्ट्रेस होगी, आपकी ना थॉट्स भी क्विक हैं और आपकी ब्रेथ भी शैलो होगी. आप यहां से यहां तक ब्रेथ लेंगे बस, क्योंकि आप जल्दी जल्दी सोच रहे हैं. तो जब हमारे बोलते हैं ना कि यार सांस लो, सांस लो, you're not actually breathing when you're angry or you're thinking hard. People hold in their breath when they're thinking because they want to think, right? Or people have very poor quality breathing, and that also leads to your body thinking कि यार कुछ टेंशन वाली बात चल रही है. आपने if when you're driving you have that experience, right? कोई आपको suddenly कट करेगा तो आप थोड़ी है कि ठंडी ठंडी आहें ले रहे हैं. No, you're going to stop breathing and start figuring out how to protect yourself in your car, right? And so your breathing and your thinking are involved in stress. And that's what causes over a long period of time. आप young भी हैं तो आपको your immune system, your digestive system, your procreative system, सब कुछ धीरे धीरे खराब होने लगेगा उस वजह से, right? Because सब कुछ linked है एक दूसरे से. So what you want to do is figure out how not to be stressed. But वो कैसे करेंगे? उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, just for fun. अमेरिका की नेशनल बर्ड गोल्डन बॉल्ड ईगल है, लेकिन there was a school of thought earlier that the national bird should be the turkey. Turkey not the country but turkey यानी कि ये वाले जो मोर टाइप के क्रीचर्स होती हैं टर्कीज, ये सड़क पे ऐसे घूमते रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ. यहाँ की वो मुर्गे हैं. एनीवे, सो टर्कीज के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी नहीं दिख रही है, अभी दिखेगी बहुत जल्द. हाँ, ओके. टर्कीज हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट देम. टर्कीज जो है वो सोशल टाइप के लोग होते हैं और वो फॉलो द लीडर इनकी होती है. फॉलो द लीडर, आगे वाला कुछ कर रहा है तो पीछे वाला भी करेगा. एक हिंदी में भी बोलते हैं ना, वो तीतर के आगे दो तीतर और तीतर के पीछे दो तीतर. तो टर्कीज की भी ऐसी कहानी होती है कि आगे वाला जो कर रहा है वो पीछे वाला भी वही करेगा. कई बार लेकिन ऐसा होता है कि आगे वाला टर्की को पता नहीं कि पीछे वाला उसके पीछे आ रहा है, वो अपने आगे वाले टर्की को देख रहा है. तो कई बार ये डायनामिक शुरू हो जाती है. ये देखिए, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, अभी देखना अचानक क्या होगा. How long do you think they're going to do this? ढाई मिनट का वीडियो है. टर्की को कोई शर्म नहीं है, वो एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं. सो द प्रॉब्लम, यानी टर्की में इसलिए आपको कहानी बताई, आप ये दिमाग में बिठा लें ये बात, क्योंकि बात सिर्फ टर्कीज की नहीं है, बात आपकी थॉट्स की भी यही है. आपकी जो थॉट्स हैं उनमें कोई कंटेंट नहीं है, थॉट से कुछ हो नहीं रहा है दुनिया में, लेकिन जो थॉट्स हैं वो अगले वाली थॉट को देख रही है, अगले वाली थॉट पिछले वाली थॉट को देख रही है, और बहुत ही जल्द थॉट्स भी एक के पीछे एक भाग रहे हैं, एक के पीछे एक भाग रहे हैं. उनका एक विशियस सर्कल बन गया है, एक के पीछे एक भाग रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है लेकिन भाग रहे हैं. और उनके भागने से आपकी सांस रुकी हुई है, आपकी सांस रुकने से आपका हार्ट बीट ज्यादा चल रही है, हार्ट बीट ज्यादा चलने से बॉडी को लगता है कि यार कोई टेंशन हो रही है, यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो बॉडी भी कहती है यार बाकी सब छोड़ो यार, ये टेंशन हो रही है यार, भागो. सो सडनली योर एंटायर बॉडी इज डूइंग द सेम थिंग लाइक दिस टर्कीज, एंड सो यू आर नाउ कैरिंग स्ट्रेस इन योर बॉडी फॉर नो रीजन. आपने इन टर्कीज में देखा, दे हैड नो रीजन टू बी रनिंग अराउंड ईच अदर. 2.5 मिनट तक एक के पीछे एक लगे हुए हैं.
So your situation is not very different from these turkeys. हम turkeys पे हंसते हैं, लेकिन हम खुद ही रोज यही काम कर रहे होते हैं. एक के बाद एक thoughts, एक के पीछे एक दौड़ रहे होते हैं. So that is stress. That is why you're stressed out. ऐसा नहीं है कि आपके पीछे रोज शेर दौड़ रहा है और दिन के 24 घंटे शेर ही दौड़ रहा है. मतलब ऐसा कोई है तो हाथ रेस करके बता दें. But generally speaking, all of these are adija vyadis, यानी कि they are thought-borne diseases. 80%, there was a doctor who reported, 80% of modern diseases are thought related. क्यों है वो? Because we live in our heads. We don't live in our bodies. Bodies पे हम attention pay नहीं कर रहे होते. If you pay attention to your body, you'll realize that you're stressed out and you'll think it's not that. इतनी बड़ी भी बात नहीं है कि आदमी stress carry करे. दिन में 2-4 मिनट ठीक है, आदमी को stress होना चाहिए, लेकिन 24 घंटे की तो ठीक बात नहीं है. Right? So you have to start listening to your body to be able to not be stressed out. And then you'll be able to respond. Now I'm going to pause here. क्या time हो गई थी? Okay. Now I'd like to hear any reaction or क्या सीखा आपने अभी तक? Someone play back to me what you've heard. Quiz है? अभिषेक जी, आप दो लोग बैठे हैं, अभिषेक चौहान, हाँ, and the lady. Unmute करके बताएं आप क्या सीखा आपने? Yashna, go ahead. Yeah, Abhishek ji, go ahead. Unmute yourself and talk. We can't hear you. देखो, उनको अनम्यूट करने में भी स्ट्रेस हो रही होगी इस समय. अभिषेक, ये वो जूझ रहे हैं अभी म्यूट के साथ. बॉटम लेफ्ट पे देयर इज एन अनम्यूट बटन ऑन योर स्क्रीन. बॉटम लेफ्ट ऑफ योर Zoom स्क्रीन. चलो कोई बात नहीं, अभी आपत्ति मतलब आपदा टल गई है, किसी और से पूछ लेते हैं. चेतना. So, what I've understood from what you shared of the very funny clip of the turkeys running around each other is it's a vicious circle, stress, and how it takes over your body and your mind is just in a loop, because you have one reaction and that sets off a reaction in your mind, and that sets off a reaction in your body. So you start stress eating, you start a lot of physiological changes happen in your body that stresses you out more mentally, and again that has an impact on your body. So you've got to break the cycle somewhere, and so that you can kind of stop both the things from happening. Fantastic, good learning. Abhishek, आपने तो स्क्रीन ही बंद कर दी, so I can't even see you. अनम्यूट करना था, उन्होंने स्क्रीन बंद कर दी. ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी. Go ahead, Abhishek. You can say something. अभिषेक, बॉटम लेफ्ट में म्यूट का बटन है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो एंड आप अनम्यूट हो जाओगे. ओके, किसी और से पूछते हैं जब तक अभिषेक फिगर आउट कर रहे हैं. ऐसे जिस तरीके से आप लोग अपना कैमरा बंद कर रहे हैं, थोड़ी देर में बस अमिताभ बच्चन वाली हालत हो जाएगी मेरी, कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें किया करते हैं. अभिषेक, Alt A ट्राई करो, Alt A से हो जाएगा. I think they're on the phone. फोन पे? अच्छा, फोन में स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो हमारी टिंडर मैच हो जाएगी. हेलो सर, अभी आवाज आ रही है हमारी? आ रही है गुलनाज, we can hear you. Echo है गुलनाज, लेकिन I think you are connected from 2 devices. Yeah. Yeah, Abhishek is sitting right next to her. लैपटॉप में था तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, कनेक्ट नहीं होता है उसमें. हाँ जी, तो आपने क्या सीखा, क्या समझ आया आपको? सर, इसमें ये सीखा हमने कि किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपने हिसाब से काम करना चाहिए और अपने पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए उस चीज में. यार, अपने बॉस के सामने ये सब मत बोलो यार.
और स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में आपने क्या सीखा? स्ट्रेस तो ये मतलब किसी को फॉलो करते रहो, उसमें स्ट्रेस है एक चीज को उसने बात बना दी, उसको फॉलो करते रहो हमेशा, तो उसमें तो न्यू या तो उसमें मतलब टारगेट ये रहता है कि उसने ऐसा करा तो उससे ज्यादा मुझे करना है। अच्छा, गुड, ऑलराइट, ठीक है, चलो पास हो गया, कोई बात नहीं। और कोई सवाल? अंकित, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से? हेलो। ये अंकित, हाय गौरव। हाय। आई थिंक मतलब अभी तक जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि स्ट्रेस जो है वो मतलब हमारा खुद का थॉट है, बस मतलब हम जैसा सोच रहे हैं उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, आई थिंक। गुड। लेकिन तो मैं, हाँ जी बोलिए। हाँ, लेकिन मतलब इससे मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या करें कि वो स्ट्रेस के बारे में ना सोचें। हाँ, वो आगे आएगा अगली क्लास में। बहुत अच्छा सवाल है, गुड। So let me recap what stress is. Stress is a physical reaction. आपके जो thoughts हैं वो stress नहीं है, but आपकी body का जो physical reaction है वो आपका stress है। Thoughts तो आती जाती रहती हैं, but the physical reaction you feel inside your body is the stress. So bodily tension or mental tension, both are stress, and by that you'll feel थॉट्स इन योर बॉडी। कई बार होता है ना कि आप कोई ऐसे हैं जिसको कंधे में दर्द होता है? कोई है? हाथ उठा लें आप। हाँ ठीक है, कंधे में दर्द होता है, राइट? हाँ, क्यों होता है आपको कंधे में दर्द? एक तो आप स्लाउच कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है, कई बार आपको स्ट्रेस हो रहा था ना, आप ऐसे करके बैठे हैं। वाई? बिकॉज यू आर होल्डिंग स्ट्रेस इन योर बॉडी, ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो अब ऐसे अगर आप 12 घंटे बैठेंगे तो अपने आप कंधों में दर्द होगा। Your shoulders will freeze, and then eventually, the pain will travel through your body. So stress is a physical response, not just a mental response. Mental response तो ठीक है, आपने thoughts change कर ली, break ले लिया, कुछ बदल जाएगा, लेकिन physical response जो है body में, that you will feel, and it may not be felt in your shoulder. It will show up elsewhere. It will show up in your digestive system. It will show up in your heart rate. It will show up in your diabetes. It will show up elsewhere in the body, but it comes from the same source, which is identification with thoughts, having runaway thoughts, and not being able to break this chain. वो brakes लग ही नहीं रहे हैं, accelerator पे पैर रखा हुआ है. And that inability is causing your body to feel a lot more than it should. So this is important. Everyone feels it, and it isn't that your work is that much more stressful. Like Anurag was saying, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हम बचपन में तो काफी happy go lucky थे. तो अभी ऐसा क्यों है? काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं. पहले होता था कि फोन नहीं होते थे हमारे पास, इंटरनेट नहीं होता था. So we were able to disconnect with things all the time. जो बातें हैं वो कॉन्टेक्स्ट में होती थी, जहां गए वहां पर बात हुई, लेकिन कहीं वहां से आगे निकले तो भूल गए, बात आई गई हो गई. बट नाउ वी कैरी द कॉन्टेक्स्ट. नॉट जस्ट दैट, हम अपनी नहीं और लोगों की भी टेंशन अपने अंदर लेके बैठते हैं. टीवी खोला तो लोग लड़ रहे हैं, फोन खोला तो लोग लड़ रहे हैं, कुछ ब्रेक नहीं मिल रहा है आपको. सो यू कैरी दैट इन योर ओन बॉडी, दैट स्ट्रेस over time, because you have a pattern of holding in your thoughts, having your thoughts race around each other, no break. You now begin to feel it inside you, and that leads you to much worse performance. That's the point of stress. अब आते हैं दूसरी चीज, fatigue. Stress काफी लंबे टाइम तक होने लगे तो fatigue होने लगता है. फेटिग क्या मतलब? अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम मिल रहे हो तो आप हाथ ऊपर मत रेस कीजिएगा, बिकॉज हम आपको देख रहे हैं, बट यू नो हु यू आर. स्माइल कर दीजिएगा, मैं देख रहा हूं आपको. क्रॉनिक फेटिग के काफी सारे सिम्टम. अटेंशन स्पैन बहुत हल्का हो जाता है. क्या कह रहे थे मैं? हाँ, मेरे को याद नहीं है. क्रॉनिक फेटिग, अटेंशन स्पैन इज वेरी लो, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी पुअर. क्या बोले? उनको समझ नहीं आया. यू नॉट एबल टू पे अटेंशन. भूलने लगते हैं चीजें. सुबह कुछ बात हुई, आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले कुछ बात हुई, यू कीप फॉरगेटिंग इट. नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं. योर इम्यून सिस्टम
begins to rebel against you. छोटे छोटे कॉमन कोल्ड से ही आपको बुरी हालत होने लगती है, एंड फिर फिजिकल सिम्टम्स होने लगते हैं. एंगर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये होने लगता है. एंजाइटी क्या है? वो जो टर्कीज देखे थे, वो टर्कीज बस एक के पीछे एक दौड़ जा रहे हैं, एंड दैट्स एंजाइटी. दैट माइट इवेंचुअली लीड टू अ पैनिक अटैक. हो कुछ नहीं रहा है दुनिया में, लेकिन थॉट्स ऐसी हो गई हैं कि यू आर नाउ बिकमिंग पैनिकी. That leads to chronic fatigue. Chronic fatigue का क्या मतलब है? गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप वो धुएं से चल रही हैं गाड़ियां, right? You have no access to your sources of energy. That becomes your situation where you're feeling exhausted. अब कुछ मजा नहीं आ रहा है किसी चीज में, कहते हैं ना मजा नहीं आ रहा है, टेंशन ही टेंशन है. Cynicism and detachment is a result of that, because मजा नहीं आता है किसी चीज से, और किसी से कनेक्शन नहीं फील कर रहे हो आप. ये भी बेवकूफ है, वो भी बेवकूफ है, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, एंड इवेंचुअली डोंट कनेक्ट विद एनीवन. सब कोई बात मत करो यार मुझे, राइट? एंड देन यू फील काम में भी मजा नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हैं हम, क्यों, क्या होने वाला है इससे, एंड देन इवेंचुअली पुअर परफॉर्मेंस. ये सारा रिस्पॉन्स कम्स फ्रॉम दिस पैटर्न दैट वी जस्ट डिस्कस्ड अर्लियर. कोई ऐसा है जिसको इनके कुछ ना कुछ नहीं दिख रहे हो? आपकी लाइफ आशा से भरी हुई है, हर चीज में सनलाइट ही सनलाइट है? ऐसा तो नहीं है कोई? थोड़ा थोड़ा तो सबको दिखता है, और कुछ को थोड़ा से ज्यादा दिखने लगेगा, एंड दैट्स द चैलेंज. ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम आप स्ट्रेस से फैटिग की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड, योर बॉडी इज फीलिंग इट. योर इनएबिलिटी टू break your chain of thoughts is leading to this. Your inability to listen to your body is leading to this. Your inability to connect with other people, मैं उसके बारे में बात करूंगा, is leading to this. And ये loss of enjoyment जो है बहुत ही बुरी चीज है, because once you stop enjoying what you're doing, you're going through the motions. बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, सब seemingly कुछ, लेकिन हो नहीं रहा है. तो आप सेम काम करने में घंटे घंटे लगाए जा रहे हैं. जो चीज आप आधे घंटे में कर सकते हैं, वो 6 घंटे में हो रही है. बट आपको लग रहा है कि बड़े प्रोडक्टिव है, हम ऑफिस में बैठे हुए थे 12-12 घंटे, मजा नहीं आ रहा है. लेकिन दोज इवेंचुअली दिस फटीग विल गेट टू यू. आदमी बोरियत से बीमार हो जाएगा, या बीमारी से बीमार हो जाएगा, राइट? एंड इट्स अ नेगेटिव पैटर्न दैट यू हैव टू ब्रेक. जो आपको सीखनी चाहिए, जो आपको मैं सिखाऊंगा, is to be able to break that pattern of thoughts. Because once you break the pattern of thoughts, you'll be able to now connect with your body and be able to restore the sense of harmony and enjoyment that you want. आप काम में घंटे नहीं लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं. आपका काम सोचने का है, आपका काम लिखने का है, आपका काम कन्विंस करने का है, राइट? आप किसी और से बात करते हैं, तो योर जॉब इज टू कन्विंस देम टू डू समथिंग. यू कांट कन्विंस देम इफ यू डोंट हैव एनर्जी इनसाइड यू, राइट? आप अंदर से खोखले हैं तो अगले को आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे. क्यों? बिकॉज ये सब एनर्जी का खेल होता है. आवाज में कितनी एनर्जी आ रही है, आपके थॉट्स में कितनी एनर्जी आ रही है, उसका फर्क पड़ता है. बट इफ यू आर फैटिग्ड, then your performance is much worse, because your thoughts don't have energy, your voice does not have energy, your physical presence has poor energy. As a result, your performance is now worse, because you can't convince people to do what you want them to do. तो आप क्या करते हैं कि आपके पास एक ही पत्ता रह जाता है, गुस्सा करने का. So you now apply, because गुस्सा करने से एनर्जी आती है, राइट, आपको. So you now have angry thoughts. ऊंची आवाज में बोलते हैं. एंग्री थॉट से आपका दिल भी छोटा होता है, अगले का दिल भी छोटा होता है. एंड बाय दिस मैं पोएटिक तरीके से नहीं बोल रहा हूँ कि दिल छोटा होता है. आपको फिजिकली फील होगा कि यहाँ पर जो मैंने नमस्कार आपसे करा था, यहाँ पे एक कुछ छोटा हो गया है, भारी हो गया है. दिल बोलते हैं ना, दिल भारी हो गया है, दिल छोटा मत करें. वो सिर्फ पोएट्स की लैंग्वेज नहीं है, आपको फील होता है.
दिल आपका भी छोटा था, कोई आपको जोर जोर से बोले, चिक चिक कर बोले, उंगली दिखा दिखा कर बोले, तो आपका भी दिल छोटा होगा, यू विल फील इट। वो जो दिल छोटा हो रहा है वो साइकिक, यहाँ पर एक वो अनहद चक्र कहलाता है, हार्ट चक्र, वो यू विल फिजिकली फील दैट इट श्रिंकिंग एंड बिकमिंग हेवियर। जो आपको फीलिंग होगी दिल छोटा दिल कर होने वाली, उससे ये जितने रिएक्शन मैंने आपको बोले वो आपको फील होने लगेंगे। दिल छोटा होने का ऑपोजिट क्या होता है भाई? ये तो उदार दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं, खुले दिल वाले हैं, गरम दिल वाले हैं, शेर दिल वाले हैं। ये सब क्या है? शेर दिल वाला कौन होता है? जो करेजियस होता है, जो वो एबल टू मेक डिसीजंस दैट आर बिग एंड इंपॉर्टेंट, राइट? क्या आपको शेर दिल होने की जरूरत नहीं है अपने काम में? छोटे छोटे ही डिसीजंस लेते हैं क्या आप? नहीं, आपको भी छोटे मोटे डिसीजंस तो लेने ही पड़ते हैं ना। तो व्हेन यू मेक डिसीजन, तो इफ यू आर अनसर्टन, तो आप शेर दिल नहीं चूहा दिल है, छोटे से, राइट? व्हेन यू आर able to make decisions and go to your boss and say, you know, this is how we're going to do it, all of that comes from this heart. लेकिन आपकी थॉट्स जो हैं वो ऐसी हैं कि वो दिल छोटा करने वाली हैं, and that leads to poor performance at work. That's what I'm coming to. So इस वाले सेगमेंट में आपको क्या बोल रहा हूं? Your performance at work is directly linked to how much energy you feel and how much energy you communicate. एंड एनर्जी आप दिल में फील करेंगे, दिमाग की एनर्जी भी दिल से आती है यहां पर। तो जब आप कहते हैं कि काम में दिल नहीं लग रहा है, ये दिल की बात हो रही है। दिमाग तो लग रहा है लेकिन दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है बैठने की। ये आपको थोड़ा पोएटिक से लगेगा, तो अभी हम थोड़ी देर में मेडिटेशन पे जाने वाले हैं, बट आई वांट टू आस्क यू इफ यू अंडरस्टूड दिस। ये आपकी लेट मी से दिस इन द लैंग्वेज ऑफ जस्ट, ये बात आपके दिल को छुई कि नहीं? सुरुचि के दिल को छुई, उन्होंने थम्स अप दे दिया, बहुत अच्छी बात है। और कोई लोग कुछ बोले? और फिजिकल वर्चुअल थम्स अप भी ठीक है। कोई यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से, अनुपमा जी, व्हाई डोंट यू टेल अस सिंस यू आर ऑन माय टॉप लेफ्ट स्क्रीन? Yeah, so I understood, but this point is very important actually. Nowadays स्ट्रेस पहले डील कर रहे थे, बट मुझे लगता है हम फैटिग की तरफ यस बढ़ रहे हैं, बिकॉज मेनी टाइम स्पेशली आई हैव हर्ड insomnia is the very much common these days. People are not able to sleep and the common thoughts जो दिन भर ऑफिस में हो रहा है, कई बार स्पेशली मेरे साथ भी कई बार होता है कि if I'm going to sleep that comes in running, like कल मुझे जो करना है वो आज ही रात में मेरे दिमाग में चल रहा होता है। तो that is a common problem nowadays. तो मुझे लगता है कि yes, we have to take a very huge control over it. Otherwise that can impact. Very nice, good. और कोई? स्ट्रेस की बात नहीं है, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड share what you understood. This is feedback for me, so I know what I'm saying is being understood. दिल के बारे में जो बात करी थी, आपके दिल को छुई कि नहीं? आपका कैमरा बंद है लेकिन आपका नाम मुझे दिख रहा है, मैं आपका नाम भी कॉल आउट कर सकता हूं। सब मन मन मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कोई बोलेगा नहीं। पूजा जी, you're smiling the most, so why don't you tell me? Yes, basically जैसा आपने बताया that what happened, if we feel anger then you know heartbeat immediately बहुत ज़्यादा fast मतलब you know fastly चलने लगता है, and then reaction भी, even pitch भी बहुत ज़्यादा you know aggressive हो जाता है at that time. Yeah, and वो आप जो आपकी high pitch, जैसे कोई आपसे high pitch में बोले या angry words में बोले, राइट, तो आपके ऊपर क्या रिएक्शन होता है? आपका हार्ट, आपको लगता नहीं कि दिल छोटा हो गया, कान बंद होने लगते हैं? Yes, आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, राइट? दैट इज आल्सो स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस होता है वो, बिकॉज यू आर सडनली फीलिंग कि यार यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। गार्ड आपके दिल में एक दीवार से बनने लगती है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ, ये ठीक नहीं है, मेरे पर अटैक हो रहा है हर तरीके से। So that leads your energy levels to also drop because you're trying to protect yourself.
So you're not able to communicate. आप कोई ऐसा है जिसको काम में एनर्जी ना डालनी हो? यहाँ पर आपका सिर्फ दिमाग का काम है, कोई एनर्जी डालनी नहीं है, कोई ऐसा नहीं होगा. Because your job is also to convince other people, right? When you talk to someone, you have to convince them about your point of view. You can't convince people if you don't put energy into things. Energy आपकी thought और voice में नहीं है, आपके heart में भी होती है. And a majority of your energy is in the heart over here in the center of your chest. So if you don't feel the energy, you can't project the energy. If you don't project the energy, you can't convince people. लीडर्स का यही काम होता है, मैनेजर्स का यही काम होता है, कोई भी आपका इंटरपर्सनल काम है, सब में एनर्जी लगती है, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो. So what happens is to get a response from other people, आपको सिर्फ फिर एक कार्ड रह जाता है, गुस्सा करना है, चीखो. Because that's the only way you are able to project energy and convince people. But you'll realize it comes at a cost. Because अगला, जैसे मगरमच्छ के बारे में आपने सुना है कि जब मुंह खोलता है तो आंखें बंद कर लेता है? कभी सुना है आपने? देखा है मगरमच्छ जब मुंह खोलता है तो आंखें बंद कर लेता है. तो वैसा ही है, जब आप चीखते हैं किसी के ऊपर तो लोगों का दिमाग और कान सब बंद हो जाते हैं. They are unable to pay attention to what you want them to do because you are screaming at them. चाहे बच्चे हों चाहे colleagues, सबके ये काम है. So you have to learn to convince other people by projecting energy differently, without being angry, without using sharp or harsh words. Because otherwise, आपके interactions भी जो हैं वो भी poor quality होने लगते हैं. And that's very important. Because over time, those interactions lead to poor relationships. For no reason. अगला बुरा नहीं है, आप भी बुरे नहीं हैं. But आपकी stress communicate हो रही है बाहर. आपने कभी ऐसा देखा है कि आप जब पहले, रिमेंबर दोज डेज जब आप ऑफिस जाया करते थे, तो ऑफिस से घर आए, ऑफिस की टेंशन घर आ गई और आपके बच्चों में, आपके स्पाउस में वो टेंशन, यू आर फीलिंग इट, दे आर फीलिंग योर टेंशन. ऐसा किसी ने एक्सपीरियंस किया है? टेंशन आपको काम की है, घर आए और घर में सबको होने लगी टेंशन आपके आने से, राइट? वो क्यों होता है? Because they're sensing your energy, you're putting that energy out by being angry. Abhinav को mute कर दें please. Thank you. All right. So that's what happens when you're not paying attention. All right. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. मुल्ला नसरुद्दीन जो हैं अपने गधे पे बैठे हुए थे, काम पे निकले हुए थे. तो एक दोस्त ने उनसे पूछा, भाई मुल्ला कहाँ जा रहे हो? तो मुल्ला ने कहा, मैं बस शहर से बाहर जा रहा हूँ, अभी काम करके वापस आता हूँ. तो हंसने लगा उसका दोस्त. थोड़ी देर आगे गए, एक और दोस्त ने पूछा, भाई मुल्ला कहाँ जा रहे हो? तो मुल्ला ने कहा, यार पता नहीं तुम लोगों को क्या हो रहा है, मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद काम करके वापस आ जाऊंगा. फिर थोड़ी देर और आगे गए तो मुल्ला से एक और दोस्त ने पूछा, भाई मुल्ला कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, यार तुम लोग पता नहीं कैसे पागल हो, मैं तो शहर के बाहर जा रहा हूँ, काम करके आऊंगा तो मिलूंगा. तो वो भी हंसने लगा. तो मुल्ला ने फिर कहा, यार तुम लोग या तो पागल हो या मेरे सारे दोस्त बेवकूफ हैं. जब मैं दिख रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूं, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो कि मैं कहाँ जा रहा हूं और हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मुल्ला, तुम गधे पे उल्टे बैठे हो, तुम्हारा गधा शहर के अंदर जा रहा है. तो मुल्ला ने कहा, तो यार अगर गधे के बारे में पूछ रहे हो तो गधा शहर अंदर जा रहा है, लेकिन मैं तो बाहर जा रहा हूं ना, मेरा मुंह देखो, मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ, गधा शहर के अंदर जा रहा है. तुमने मुझसे पूछा तो मैं बाहर जा रहा हूँ, आप गधे से पूछोगे तो गधा अंदर जा रहा है. तो जिससे बात करो वो बताओ. तो ये थी मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी. तो हमें इट्स सच अ फेमस स्टोरी बाय द वे कि टर्की में ये एक्चुअल स्टैचू है ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन ऑन हिज डोंकी. नाउ व्हाई इज दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग? आपका दिमाग भी वही गधा है,
मुल्ला नसरुद्दीन वाला। आप भी मुल्ला नसरुद्दीन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बैठे तो आप काम पर हैं, काम एक्स करना है, और जो आपका दिमाग का गधा है वो काम वाई और जेड पे लगा हुआ है। लेकिन आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हैं, मैं ये कर रही हूं, इन योर माइंड यू आर डूइंग, यू नो, इन योर सेइंग्स, आपके कैलेंडर पे लिखा हुआ है कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपका गधा कहीं और जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज until you can pay attention to what your mind is doing, you're probably doing the wrong thing. अब हम आएंगे attention residue के ऊपर। Then we'll sit for meditation for a few minutes. कोई सवाल आपके दिमाग में आया है जो आपको निकालना हो अभी? आपका गधा कहीं और जा रहा है और मेरा वाला गधा कहीं और जा रहा है, ऐसा तो नहीं है? कोई सवाल, फीडबैक दो यार, ऐसे मजा नहीं आता। मेरा क्वेश्चन है, हाँ, स्ट्रेस भी पता चल गया हमें, फैटिग भी पता चल गया, बट इन सबको ओवरकम कैसे करना है? अगर हम छोटा सा स्टेप भी लेते हैं कि मतलब जैसे लॉकडाउन के बारे में हम बात करें कि अभी सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने एक दिन ब्रेक ले लिया, हम कहीं थोड़ा छोटा मोटा आउटिंग करके आ गए, तो वो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए ही ठीक रहता है, फिर अगेन दोबारा से वही थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एंड यही स्ट्रेस एंड फैटिग दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए आगे? वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड। और क्या सवाल है? पूजा जी, आप कुछ बोलने वाली थी? नो, ऑलराइट। अदर पीपल हुज कैमरास आर नॉट ऑन। राजेश बोलिए। गौरव जी, जनरली जो मैं अपने साथ या अपनी टीम को मैं जस्ट गाइड करता हूँ कि कई बार हम लोग आईटी से रिलेटेड है और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं या कुछ लॉजिक लगा रहे होते हैं, तो पता चलता है कि हम 2 घंटे 3 घंटे बैठे हुए हैं और वो हो नहीं रहा है, एंड वी टेक ए ब्रेक, कुछ चाय कॉफी पी के आते हैं, एंड ऑल ऑफ ए सडन अरे ये सॉल्यूशन था, and within seconds it get resolved. That's so right. what this we don't understand how it happens. बहुत अच्छा सवाल है। तो कुछ चीजें अकस्मात जब अपने आप हो जाती हैं और आप लगे रहो तो नहीं होती हैं, राइट? हाँ, इवन लाइक मैं कुछ देख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम को और इट्स नॉट गेटिंग रिजॉल्व, जबकि वो क्या गलती लिखा हूँ वो मुझे नजर पे नहीं आता है। वही चीज मैं अगर किसी और को एक बार बोलता हूँ एक बार देख ले भाई, तो देखते हैं नहीं, फाइंड आउट क्या चाहिए तो सामने ये मिस्टेक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा फीडबैक है। थैंक यू राजेश। मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, इसी पॉइंट से शुरू करूंगा, सो जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट कोई और फीडबैक, कोई प्रश्न या कोई कमेंट? नो कमेंट, ऑलराइट, गुड। कबीरदास जी क्या गए? कबीरदास जी की एक बहुत फेमस चौपाई है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैंट, मैं बारी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो जो मुझे चाहिए, जिन खोजा तिन पाए, जो खोजा, जो भी ढूंढा सब मिला। जो राजेश बोल रहे हैं, जो भी आपको जवाब चाहिए सब मिलेंगे गहरे पानी पैंट, लेकिन वो गहराई में जाकर ही मिलेंगे। लेकिन मैं बारी डूबन डरी, मुझे तो भाई डूबने का डर है, तो मैं तो किनारे बैठी रही। तो मेरे अंदर से जो सवाल के जवाब हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये आपको राजेश, आपको ये जो आंसर आया वो अंदर से ही आया। ऐसा नहीं है कि कहीं पे इंटरनेट बाबा में आपको आंसर दिया, आपके अंदर से ही है ये सब जवाब, राइट? अंदर से आया, लेकिन आप जो है सतह पे बैठे हुए हैं, सरफेस पे बैठे हुए हैं। यू आर अफ्रेड ऑफ गोइंग इन, right? That is the reason you guys spend more time at work than you need to, because आपके जितने आइडियाज हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट? जितने आइडियाज हैं, जितनी क्रिएटिविटी है, वो अंदर से आती है, लेकिन आप बाहर बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप भी डूबने से डरते हैं। आपको भी लगता है कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो थॉट्स के लिए पैसे मिल रहे हैं, सॉल्यूशंस के लिए नहीं, सोचने के पैसे मिल रहे हैं।
तो आपको लगता है, और सोचने में मजा भी आता है, आप घंटों घंटे लगे हैं सॉल्व कर रहे हैं, गुत्थी है आपको सॉल्व करनी है। लेकिन क्या होता है कि आपको पैसे क्यों मिल रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के मिल रहे हैं, राइट? लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थॉट्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी नीचे से थॉट्स ऊपर आएंगे। लेकिन थॉट्स को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप जानते नहीं है कि थॉट्स को कैसे छोड़ें। आपको लगता है आपके थॉट्स में ही कुछ ना कुछ जीनियस पड़ा है। लेकिन आप देखेंगे जितने भी जीनियस हैं उनको अंदर से आवाज आती है, चाहे वो यूरेका वाला हो आर्किमिडीज या वो बेंजीन वाले कैक्यूल हो, उनको आधी नींद में ही आवाज आती है। आपके भी जो सॉल्यूशंस हैं आपके अंदर हैं, लेकिन आपकी जो थॉट्स हैं वो रास्ता रोके हुए हैं। वो कौन सी मूवी थी, रॉकस्टार में एक लाइन थी ना कि जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करें अल्फाज मेरे। जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं वो आपके अंदर है, लेकिन आपकी वर्ड जो हैं, आपकी थॉट जो है वो बीच में आ रही है। तो इफ यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर थॉट्स, जो अंदर की बात है वो भी ऊपर आ जाएगी। वो अब हम ट्राई करेंगे। कोई कुछ कहना चाह रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं कहना चाह रहा, कोई बात नहीं, कोई नहीं कहे, कहता रहे। ओके, सो we're going to sit into meditation now for about 10 minutes. I'll teach you meditation. बहुत सरल है, तो आप रहिएगा। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, अटेंशन रेसिड्यू का। अटेंशन रेसिड्यू का क्या मतलब है? इसमें बस ये वर्ड लिखे हैं, अटेंशन रेसिड्यू इज दिस। आपने सुबह खाली दिमाग आए, एक काम शुरू किया, फिर वो काम रोक दिया, दूसरा काम शुरू कर दिया, फिर दूसरा काम थोड़ा थोड़ा कर लिया, फिर तीसरा काम आ गया, तो आपने तीसरा काम शुरू कर दिया। आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है, एक काम अभी थोड़ा रुका हुआ है, दूसरा काम भी रुका हुआ है, तीसरा काम भी रुका हुआ है, चौथा काम पे ऊपर अटेंशन कर रहे हैं। अटेंशन जो है वो थोड़ी थोड़ी टिकी रहती है पुराने कामों पे। इट्स कॉल्ड अटेंशन रेसिड्यू। तो क्या होता है कि ओवर maybe 1 hour of working, 2 hours of working, दिमाग में भूसा भर गया। You have all these old thoughts that are sitting in your head. Now what is happening to your attention? आपकी attention इतनी सी रह गई on the task you are actually doing. पुराने काम जो हैं उन पे भी अभी दिमाग टिका हुआ है। So what happens is your attention available to your task at hand कितनी हो गई? 1/10, 1/20. आउटपुट कितना निकला आपका? आउटपुट आपका निकला इन रिवर्स प्रोपोर्शन। मैं आपको ये दिखा दूं, ये फॉर्मूला अपना आउटपुट फॉर्मूला। तो आप क्या करते हैं कि आपकी अटेंशन है कम, तो आप क्या कहते हैं, फोकस है कम, तो आप कैसे कॉम्पेंसेट करते हो? ज्यादा टाइम लगाकर, राइट? आपकी 1/10 अटेंशन है तो 10 टाइम्स टाइम लोगे आप। तो क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं प्रोडक्टिव हूं, लेकिन आप प्रोडक्टिव नहीं है कि आप थक रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। सो दैट्स अ चैलेंज दैट यू आर गोइंग टू फेस, व्हिच इज if you don't let go of tasks by finishing them or by parking them, you're going to have low attention, low focus, and therefore take longer to finish your work. छोटा सा काम भी दिनों दिन लग जाते हैं। And so you need to learn to meditate, जो कि अभी हम बात करने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? मेडिटेट करीब 5-10 मिनट करेंगे, ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। So I'll teach you the basics of meditation. मेडिटेशन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इट्स लाइक स्लीपिंग बट यूर अवेक। मेडिटेशन का मतलब है, और काफी मेरे वीडियोस हैं, आई कैन कम बैक एंड टीच यू टू मेडिटेट प्रॉपर्ली। मेडिटेशन इज सिंपली द लेटिंग गो ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन विद योर थॉट्स। आपको लगता है मैं ये शरीर हूं, ये ठीक नहीं है, ये शरीर आपका है लेकिन आप ये शरीर नहीं है। आपको लगता है मैं ये थॉट्स हूं, ये थॉट्स मैं ही हूं, मेरे थॉट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थॉट्स वो ऐसा है कि मेरा एंटीना आपने चला रखा है, थॉट्स इधर उधर उड़ती जा रही है। यू कैन डिसएंगेज विद योर थॉट्स। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। क्या करेंगे? हम अपनी नाक पे या सांस पे अटेंशन देंगे। आज हम सांस पे अटेंशन देने वाले हैं। उससे क्या होगा कि यू विल फील दैट द थॉट्स हैव कम एंड गॉन। बात आई गई हो गई एंड दिमाग अब साफ हो गया है। That's what we're going to practice. आप तैयार हैं? All right. Some of you are slouching. Please turn your videos on so I can see you. I promise I will not ask you questions. हाथ रेज करेंगे तभी होगा. All right. Now you can sit comfortably.
Sit in any comfortable posture. Don't lean back. Sit upright. Sit with your back straight. Back, neck and head in a straight line. Close your eyes gently. Relax the expression on your face. Pull up your shoulders and let go. Pull up your shoulders, let go. Pull up your shoulders, let go. Bring your attention to your belly. सांस पेट में डालें और पेट में ही पेट को ही एक्सपैंड करने दें. As you inhale, let the belly expand. As you exhale, just let go. As you inhale, let the belly expand. As you exhale, just let go. Now, slow your breath. Slow down your breath. Gently, as you breathe in, breathe into your belly, let the belly expand. Now, as you exhale, hear your own voice in your own head tell you to let go. और छोड़ दें. जितने विचार आ रहे हैं उनको छोड़ दें. Let go of all your preoccupations. Breathing into the belly, let the belly expand. And breathing out, let go of all unfinished business. जितने अधूरे काम हैं सबको छोड़ दें. Breathing into the belly, let the belly expand. Breathing out, let go of everything. Breathing into the belly, let the belly expand. Breathing out, let go of everything and feel a sense of lightness. Sweep through the body. Breathing into the belly, let the belly expand. Breathing out, simply let go and feel a sense of relief sweeping through the body. Breathing into the body, into the belly, let the belly expand. Breathing out, feel a sweeping sense of relief roll through the body. Breathing into the belly. Breathing out gently. Breathing into the belly, let the belly expand. Breathing out, simply let go. Feel a sense of lightness. Now we're going to come out of this very gently. Now your eyes have been closed, your pupils are dilated. So rub your palms together to generate some heat. Gently cup your warm palms on your eyeballs to transfer that heat. And then blinking, open your eyes and pull your palms back like an open book. Pratikriyaएं, कोई reactions? Anyone want to share anything? I have a question, Gaurav. Is it the only way to disconnect, or is there anything else that we can do? There are many ways to disconnect.
This is one of them. Meditation, you're saying, or this type of meditation? Yeah, meditation or okay. Meditation is one way that we can disconnect. Yeah. There are many ways of meditation, is how I'd like to say it, which is you can sit the way I've shown you. You can also sing, whistle. Some people exercise. Some people do other things. The disconnecting from your thoughts can take many different ways, whatever works for you. But take a break and really do things that you enjoy. That is very important. कुछ भी करें जो आप एंजॉय करते हैं, चाहे स्केचिंग करनी हो आपको. आजकल कलरिंग बुक्स बड़ी चल रही हैं फॉर द सेम रीजंस. वो बच्चों की जो होती हैं, यू कैन टेक द सेम कलरिंग बुक्स एंड डू इट, बिकॉज वो रिपेटिटिव प्रॉपर्टी है. उससे आपको रेपिटेशन अलाउज यू, मंत्र की तरह होता है वो, and it'll automatically get you to a similar state. Any other reactions or questions? I have one. So, who is this? Chetna. Oh, Chetna, I see you. Yes. Yeah. So I always feel drowsy when I meditate. I'm otherwise an insomniac. I rarely sleep for more than 2 or 3 hours. And but if someone asks me to meditate, I think in 10 minutes I'd be napping. चमत्कार है ना? So I have meditations recorded for you as well. You can go to my channel, like I just said, on YouTube. Just look for Yoga Nidra, and you'll find a few. So feeling drowsy is a natural thing because, like I showed you, brakes and our accelerators, right? तो आप एक्सेलरेटर पे इतने पैर डालने की आदत है कि पैर हाथ जैसे ही एक्सेलरेटर से हाथ हटा ब्रेक पे लगा. But eventually, so you're beginning to feel sleepy. Eventually, you want to be in a state where you have both under control. जब ब्रेक टैप करने ब्रेक टैप करी, जब एक्सेलरेटर टैप करना तब एक्सेलरेटर टैप किया. बट ये नहीं कि दबा के रखे हुए. योर आइडियल स्टेट, कोई आपने स्पोर्ट्समैन देखा होगा, वो क्रीज पे जैसे बैट्समैन आएगा तो बैट को टैप करेगा और बिल्कुल तैयार रहेगा. वो स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, बिकॉज अगर वो स्ट्रेस्ड आउट होगा दे कांट सी द बॉल इन टाइम, राइट? दे हैव टू बी रिलैक्स्ड एंड अलर्ट एट द सेम टाइम. So in your work, you have to be the same. You have to be both relaxed and alert. तो जो चेतना आप कह रही हैं, alertness से जैसे ही हाथ हटा तो आप बिल्कुल इतने relaxed हो गए कि सो गए, right? You want to be in a state where you're both relaxed and alert simultaneously. And that's what meditation allows you to do. तो शुरू में होगा आपको नींद आएगी. कई लोग योग निद्रा में सो जाते हैं. It's not a problem because आपकी नींद, you have a sleep debt that you're catching up on. But eventually you'll be in a place where you're satark hain aap. You have, but you're not stressed out by it. You're relaxed. Any other reaction? Meditation बहुत सरल है. It doesn't matter what your religion is. आप जप कर सकते हो, right? हर religion में माला लेके जप करने का होता है. आप जप करो. It's not a problem. Praying is a form of meditation. You can do your prayers. It's not a problem at all. Taking a break is important. I'm coming to the break right now. What I taught you is very simple to do. There are many such techniques. मैं आप channel पे चले जाओगे. Focusing on the breath and just letting go, letting go, letting go. 10, 15, 20 मिनट जितने आप निकाल लें, it's enough to reset. और जो अटेंशन रेसिड्यू की हमने बात करी थी ना, वो धीरे धीरे आपका जो सामान है वो खाली होता जाएगा. जब आपकी अटेंशन वापस पूरे आपके कंट्रोल में आ जाएगी, तब आपका, जैसे राजेश आप बोल रहे थे, राइट, जो भी काम आएगा आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, बिकॉज यू नाउ हैव ऑल द अटेंशन अवेलेबल टू यू. काम जल्दी भी होगा, बेटर भी होगा और मजा भी ज्यादा आएगा. व्हाट्स नॉट टू लाइक, राइट? I have a question. Yes, Vishal. So, yeah, I have a problem like when you are stressed और आपके दिमाग में कुछ टेंशन है, तो अगर आप कुछ, जैसे you are saying that take a break and do what you love, what you like the most. So I can't concentrate on that thing. वो दिमाग में वही चीज चलता रहता है. तो how to disconnect from that tension और उस चीज को दूसरे किसी कहीं और फोकस अपना शिफ्ट करें. Sure. Okay. तो आपको ये बात इसी से हमने शुरू किया था. Somebody had said कि जो जैसे मोहम्मद, right, in HP, he said कि we are not able to let go, और not let go की वजह से
जो है आप उस बात पे टिके हुए हैं. एंड वन वे टू डू दैट इज व्हाई यू नॉट लेटिंग गो. आपको लगता है कि इसको छोड़ दूंगा बात तो ये खत्म नहीं होगी, वापस इट विल कम बैक टू बाइट यू, राइट? तो आप छोड़ नहीं सकते उस बात को, लेकिन आपके पकड़ने से भी कुछ नहीं हो रहा है. A way I recommend you do it is you write down the specific exact problem that you have. लिख लो, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को ईमेल नहीं भेजनी है. Just take an empty piece of paper and just write down what the problem is. सोचने की जरूरत नहीं है, जो दिमाग में आ रहा है लिख दो. Those thoughts are now assured. आपने उनको assurance दे दिया कि भाई मैं वैसे ये जो भी मैं 5-10 मिनट की स्केचिंग कर रहा हूँ या जो भी करने जा रहा हूँ, खाना बनाने जा रहा हूँ, जो भी मजे आ रहा है वाला काम, गाना गा के, आई विल कम बैक टू दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम. यही कागज मैं उठाऊंगा और इसी को मैं पिकअप करूंगा. तो आपने वो बैंक में डाल दी, फिर आपने जो चीज मजे से करनी थी कर ली, वापस आएंगी, वो प्रॉब्लम वही होगी, लेकिन इस बार आपको अलग फील होगी. यू नॉट एबल टू लेट गो बिकॉज यू आर अफ्रेड दैट, जैसे होता है ना कि वो कोई आपके पर वो कुत्ता भौंक रहा है, आपको लग रहा है वो आपको काटने वाला है, तो आपने कहा भैया इसको दूरी रखो, तो पकड़ के रखा हुआ है आपने. यू डोंट नीड टू होल्ड ऑन टू दोस थॉट्स दैट आर बॉदरिंग यू. राइट देम डाउन एंड से भाई मैं आ रहा हूँ अभी, मेरे को 5-10 मिनट की मोहलत दो, मैं अभी आता हूँ. राइट? एंड यू राइट डाउन, इट वोंट गो अवे बट इट विल बी आउट ऑफ योर हेड. आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन. नाउ हियर इज द प्रॉब्लम. आप वर्क फ्रॉम होम में आप क्यों परेशान हैं? आप परेशान ये है कि पहले आप ऑफिस जाते थे तो सुबह कपड़े बदलते थे, नाश्ता करते थे, ट्रैफिक से जूझते थे, ऑफिस में पहुंचते थे, हाय हेलो होती थी, चाय वाय पीते थे, फिर काम पे बैठते थे. अब क्या है कि बेड से निकले, वो देखे ना, तो आसमान से निकले और किस पे लटके वाली बात है. आप ना, आपका स्केड्यूल ऐसा हो गया फ्लैट लाइन टाइप का, सेम टू सेम. आपने उतरते ही सारी मीटिंग पे मीटिंग पे मीटिंग पे मीटिंग. आपको गिल्ट है कि भाई घर से काम कर रही हूं तो ज्यादा काम करना जरूरी है, तो आपने ब्रेक नहीं ली, आपने स्केड्यूल को बफर नहीं करा, आप आते ही जूझ पड़े और दिन भर आपका स्केड्यूल ऐसे ही रहा. और आपने हिंदी मूवीज में देखा ही है कि जब पेशेंट की फ्लैट लाइन होता है तो पेशेंट मर चुका होता है, होता है ना, पेशेंट इज डेड सर. तो क्यों है? फ्लैट लाइन करने से आपको वैरायटी नहीं मिल रही है. वैरायटी नहीं मिल रही है तो आपकी नॉवेल्टी नहीं आ रही है, आपकी थॉट्स में नॉवेल्टी नहीं आ रही है, एंड सो यू आर अनेबल टू गेट एनी एंजॉयमेंट आउट ऑफ इट. 11 बजे आपका दिमाग बंद हो गया और आप 11 बजे से 6-7 बजे तक शाम तक बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन बैठे जरूर हैं. So the way you have to fix it is change your rhythm. Breaks insert करें, मेडिटेशन ब्रेक ले लें, कॉफी ब्रेक ले लें, कॉफी मत पिए, जाओ वॉक करके आ जाओ. राइट? टेक अ ब्रेक, because once you take a break like this, then you're able to come back and bounce back much better. ब्रेक लंबी होने की जरूरत नहीं है, but meaningful होने की जरूरत है. You have to take a total break. Don't carry your work with you कि मैं सोच के आता हूँ, ऐसा नहीं है. Make sure you get some exercise, because if your physical body is not circulating blood, your brain will also not be circulating blood after a while. So go out, get some exercise, buffer your schedule, and begin end your day in a predictable manner. Don't carry your work back from your desk to your bed. चाहे बेड पीछे ही है, लेकिन don't carry your work with you. जो काम कल के लिए छोड़ना है आप लिख दें कोरे कागज पे, come back and pick it up, and it's not a problem. But don't carry your work with you. Otherwise, your rhythm is very important. If you don't have a rhythm, it's going to lead to poor energy and poor outcomes. उसमें कोई शक नहीं है. अब हम finally, ये कोट मेरे को बहुत अच्छी लगती है, but अभी we're going to get to this. मैंने जहाँ इंजीनियरिंग करी थी, ये कश्मीरी गेट का एरिया है, पुराना इलाका है दिल्ली का. पीछे एक घाट है, एक पीछे एक मंदिर भी है. हमारे यहाँ के बंदर ये वाले बहुत फेमस थे क्योंकि इन्होंने इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रखी थी. इनकी काफी पुश्तें इंजीनियरिंग में हमारे कैंपस में रहती थी और बंदर एक दूसरे बस घूमते रहते थे और एक दूसरे के ना ये करते रहते थे, ये पता नहीं क्या है, कितने जू होते थे इनके बालों में. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दीज मंकीज आर अ सोशल स्पीशीज. इनके मंकीज एक दूसरे की जो ही नहीं वो निकाल रहे हैं, they're actually forming relationships.
मैं आपको ये बात, ग्रूमिंग कहलाता है, ये ग्रूमिंग बिहेवियर कहलाता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मंकीज आर अ सोशल स्पीशीज, और वो उनका दिमाग जो है वो बना है इस काम के लिए, वो कंप्यूट करते रहता है। भाई किसने किसके जुए निकाले, किसने किसको दांत दिखाए, किसने किसके बच्चे को मारा, ये उनका दिमाग कंप्यूट करता रहता है। जो कि वही दिमाग हमारा भी है, हम भी सोशल स्पीशीज हैं, और एक दूसरे से इंटरैक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बना इन इंटरैक्शंस के लिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम अब क्या हो गई है कि आप ऑफिस में थे तो हाय हेलो होती थी, कि मीटिंग में बैठे हैं, एक दूसरों को कनखियों से भी देख लिया तो आपका इंटरैक्शन हो गया, राइट। बट अब क्या हो रहा है कि आप जूम पे बैठे हैं, वीडियो बंद कर रखा है आपने, आवाज आ रही है, आप कुछ और काम कर रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं, राइट। तो आपकी एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद एक दूसरे के जो जुए निकालने वाला काम था, ग्रूमिंग का जो काम था, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका जो सोशल इंटरैक्शन है, और मैं आपको ये बात बंदरों वाली क्यों बात बता रहा हूं, आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए। आपका जो सोशल इंटरैक्शन है, जो आपका कनेक्शन है एक दूसरे से, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। वो इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, सोशल बात है। और सोशल यानी कि आपके दिल को छूने वाली बात है। इफ यू आर अनेबल टू कनेक्ट विद ईच अदर, जैसे मुनीश कह रहे थे कि कम्युनिकेशन गैप है। क्यों है कम्युनिकेशन गैप? बिकॉज आप आते ही फ्रंट फुट पे आपने बैटिंग करनी शुरू कर दी, बस आ जाओ आज तो छक्के पे छक्के मारेंगे, राइट। मीटिंग शुरू हुई नहीं कि हाँ जी आज की एजेंडा ऑफ द डे ये है जी, आ जाओ चलो काम पे चलते हैं, राइट। योर प्रॉब्लम इज आप ना खुद ह्यूमन फील कर रहे हो, ना अगला अपने आप को ह्यूमन फील कर रहा है। तो आपका जो पर्सनल इंटरेक्शन था वो इतनी पुअर क्वालिटी का हो गया है कि अगेन आपका दिमाग कंप्यूटेशन के लिए नहीं बना है। मैं आपको फिर से आपको एक बात बताता हूँ बंदरों के, मैं आपको एग्जांपल क्यों दिया मैंने। जो आपका दिमाग इवॉल्व हुआ है ये वाला बहुत अच्छा सा, ये किस लिए इवॉल्व हुआ है? ये इवॉल्व हुआ ही एक दूसरे का कंप्यूटेशन करने के लिए, सास बहू सीरियल के लिए ही बना है ये दिमाग। आप मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर रहे हैं, लेकिन बना ही ये इसलिए है कि इस सास ने इस बहू को पूछा कि रसोड़े में कौन था, तुम थी, मैं थी, लेकिन ये कुकर खाली किसने रखा, राइट। यही कंप्यूट करने के लिए आपका दिमाग इन्वेंट हुआ है, ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करने के लिए नहीं हुआ है। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? आप जो हैं, आपने ये सारे एटिकेट छोड़ दिए, आप तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपने बस फोन करना है और बस तुरंत काम बताना, भाई ये काम करना है। नहीं, यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। हार्शनेस है इस आपकी आवाज में, चाहे आपकी आवाज में जितनी भी मिठास है, लेकिन इस इंटरैक्शन में कोई रस नहीं है। सो व्हेन यू वर्क विद योर कॉलीग्स, तो पहले हालचाल पूछ लें, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, कुकर में चने हैं कि नहीं, क्या चल रहा है आपके घर में, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू डोंट डू इट, तो आपके ह्यूमैनिटी जो आपका दिमाग जो आप पूरा यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग बना ही इन सास बहू सीरियल्स के लिए है, राइट। सो व्हेन यू टॉक टू ईच अदर, क्लाइंट्स हो या कोई और, पूछ लें क्या चल रहा है आज का, और सुने ध्यान से। यू हाउ आर यू डूइंग पूछा, अगले आई एम डूइंग फाइन, हाँ जी ठीक है काम पे आओ। नहीं, पूछो क्या चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, घर पे क्या चल रहा है, तबीयत ठीक ठाक है, आज क्या खाया, राइट। बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ रेपोर, राब्ता जिसको उर्दू में बोलते हैं, राइट। राब्ता एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो, क्योंकि जब तक राब्ता नहीं होगा तब तक काम कैसे होगा, आप समझ रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू बी एबल टू ट्रीट ईच अदर एज अ ह्यूमन, तभी कुछ काम होने वाला है। नहीं तो मशीन की तरह काम करेंगे तो मशीन वाला आउटपुट होगा, बस ईमेल भेज दो काम हो जाएगा, बात मत करो। बट उससे ओवर टाइम ना एनर्जी आएगी, ना मजा आएगा, और काम भी कुछ नहीं निकलने वाला है। बस इतना ही टाइम था आज हमारे पास। आपको कोई और सवाल है तो बोलें, आपको ये सेशन कैसा लगा तो बोलें, नहीं तो मैं क्लोजिंग प्रेयर करने वाला हूँ। सेशन कैसा लगा, कुछ समझ आया आपको? मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे आपने मेडिटेशन के लिए बताया, तो मेडिटेशन के लिए अभी यू आर द स्पीकर, तो आप बता रहे हैं कि मैंने आईज क्लोज कर दिया, आप मुझे बता रहे हैं कि तुम इस चीज को थिंक करो, इसको सोचो। लेकिन जब हम अकेले में बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो मेरा वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, मैं उस टाइम पर कुछ भी थिंक नहीं कर पाती हूँ कि मुझे एक्चुअली सोचना क्या है उस टाइम पर। हाँ, तो शुरू में जब आप करते हैं ना, तो गाइडेड मेडिटेशन इसलिए होते हैं, बट
मेरे खैर अगेन यू गो टू माय यूट्यूब चैनल, आई विल शो इट टू यू अगेन. बहुत सारे गाइडेड, मतलब 20 गाइडेड मेडिटेशन पड़े हैं उसके ऊपर. आप आराम से कोई भी प्ले कर लें. यू कैन गो टू दिस मेडिटेशन प्लेलिस्ट. मैंने बहुत ही मैं नए जमाने का बाबा हूं, तो मैंने बड़ा पुरानी ऑथेंटिक टेक्निक्स को मैंने नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करा. ये न्यूज एंजाइटी जो हो रही है उसके लिए एक मेडिटेशन बना रखा है. ऑथेंटिक है, इट इज फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स. मैंने टेस्ट करके बनाया है. फोकसिंग ऑन नाउ, फोकसिंग ऑन एम्प्टीनेस एंड फॉर्म. कॉफी कप के साथ मैंने एक मेडिटेशन बनाया है जो आप कॉफी ब्रेक में यूज कर सकते हैं. बहुत ही नाना प्रकार के मेडिटेशन बना रखे हैं, आप आराम से यूज करें बेधड़क. दीज आर ऑल ऑथेंटिक. आप प्ले करें, काम पे चलें, कोई परेशानी नहीं है. एंड इफ यू हैव लेस टाइम यू कैन गो टू SoundCloud. SoundCloud में योगा ऑफ लिविंग डीपली लिख देंगे तो वहां पे भी you're going to see a whole series. These are all audio. These are shorter. अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक सेकंड. ये जो है these are shorter, 10 मिनट 20 मिनट लिखा होगा इनके ऊपर टाइम. 20 मिनट्स हैं, 25 मिनट्स, जितना टाइम है उतने टाइम की आप मेडिटेशन कर सकते हैं. बहुत सारे रिकॉर्डेड है. सिंपल ब्रेथ मेडिटेशन है, कॉफी कप वाली है कॉफी ब्रेक पे. अगर आप मेट्रो में इधर उधर जाते हैं तो मेट्रो में बैठ के एक मेडिटेशन है. सब कुछ है. ये सब अवेलेबल है. यू कैन प्ले दिस एनी टाइम यू लाइक. राइट. Anurag, is this what you wanted out of this session? Suruchi, is this what you wanted out of this session? No, absolutely, Gaurav. I think it was very, very helpful. And I think, there was a lot to learn. And, when I learned a lot of things. And, particularly when you said that, when talking to somebody, पहले हालचाल पूछ लो. हम लोग आते हैं, काम में लग जाते हैं, दिमाग में जल्दी है, कि काम खत्म करना है, दिमाग में वो लगा हुआ है. So I think that is creating that, I think human issue. So I think very, very important. But I think a lot to learn from what you said, and, how to disconnect, how to let go, how to organize oneself. I think very good messaging, and I'm sure team will benefit out of it. So I must thank you for spending this time. And I must mention to the team, it was 5 a.m. when you started your time. So, thank you for giving this, and I'm sure team will benefit out of it. Abhi, with your permission, my closing prayer kar leta hu. Sarve bhavantu sukhina. It's a prayer of goodwill, and with that we will close. So once again, you can sit comfortably in any posture. Sit with your back straight, back, neck and head in a straight line. Eyes are closed gently. Relax the expression on your face. Relax your shoulder. Relax your belly. Bring your palms together in Namaskar Mudra at the heart center. Pressing the palms together gently and gently touching the back of your thumbs into the chest. If you like, you can chant Om with me once. Otherwise, I'll chant Om once, and then the closing prayer, Sarve Bhavantu Sukhina. It's a prayer of universal goodwill. Exhale completely. Take a deep breath. Inhale. Inhale and chant. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Release your palms, rub your palms together to generate some heat. Gently cup your eyeballs to transfer that heat, and then blinking, open your eyes and pull your palms back like an open. Namaskar. I really enjoyed the session with you. Thank you very much. And for those of you who are still at office, thank you for staying back for this session. I hope you enjoyed it, and I hope you learned something out of it. Please go ahead and apply all these meditations are available, and go ahead and make a difference. Thank you. All right. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Good night. Have a good day. Good night. Yeah, bye-bye. Have a good day.